Dear students, Assalamu alaikum. Today, I'm here to explain to you that how you can solve a transshipment model in MATLAB. As I mentioned earlier in class, that there are two types of approaches that can be used to solve a generic optimization problems in MATLAB. One method is use of problem-based optimization, and another method is the use of solver-based optimization. However, in this video, I will explain the use of problem-based optimization to solve transshipment problems in supply chain. So before I proceed to the optimization in MATLAB, I will define a problem in detail, and then I will use this problem to model the problem in MATLAB. So I have included a transshipment model, which is available in booklet that I have provided you, and you can see the problem. Okay, it is example number 3.1, and it is transportation model. This model says that a poultry business has its own farms located in Faisalabad and Sargodha, and they supply eggs to its 4 warehouses in Islamabad, and then those warehouses distribute the eggs to 10 retail stores. The poultry business is responsible for the transportation cost and wants to minimize the shipment cost. The distances between farms and warehouses is given in table 1. Make sure whenever you solve a transshipment problem or even a transportation model, and if distances are given, then those distances should be considered as a round trip distance between two cities. Okay, so in this case, I have considered a round trip distance between two cities. The fuel cost per kilometer is rupees 15 rupees between farms and warehouses. Okay, and the distances between warehouse and retail stores is given in table 2. Okay, the production capacity of each farms is 2 lakh and 3 lakh 50 eggs respectively. The daily demand from the retail store is given in table 3. Please remember that this is a daily production capacity of the poultry farms. Okay, and the daily demand from each retail store is given in table 3. So the poultry business wants to maximize transportation cost. To do so, they are interested in transportation of optimal quantity of eggs from farmhouses to warehouses and from warehouses to the retail stores. Okay, so this is a problem. You can see these are the sets. Okay, sets I represent farms, J represents warehouses, or J represent warehouses, and K represent customers, and T represent time period. So in this model, I'm not considering time period. So we will look at only these 3 sets. Okay, the first set shows the poultry farms. The second set shows the warehouse, and the third set shows the number of customers. And these are the parameters. Dij is distance between a farmhouse and warehouses. Djk is distance between a warehouse and retail stores. Cij is transportation cost per kilometer between farm I and warehouse J, whereas Cjk is the cost between warehouse J and retail store K. Mu T is capacity of truck type T used for transportation in supply chain, and the demand for retail store K is represented by Dk, and the production quantity of eggs in farm I is given by PCI. And here you can see that there are only 2 decision variables, Qij, that is quantity of eggs supplied by farms I to warehouse J, and then we have another variable that is Qjk, that represents the quantity of eggs shipped from warehouse J to retail store K. Okay, so this is the objective function which minimizes the total cost. You can see in the booklet if you have with you. Okay, then this is a first constraint, which is a capacity constraint, and then we have another constraint which is a demand constraint. Okay, and then we have a transshipment constraint which balances the supply and demand. Okay, now I will code this problem in the MATLAB. Okay, so to use MATLAB, what I will do, I will use
first thing that I will do, I will open the MATLAB, which is already open in my folder. So what I will do, I will just copy these sets and parameters. So in order to use this document in MATLAB, you cannot copy as such. Instead, I will take a snapshot. You can take a picture instead of a document. Let's say I'm just taking a picture of this, snapping using snap tool, and then I'll share MATLAB with you. I hope that you can see the MATLAB. So in order to model this problem, I will recommend you to use live script instead of M file. So in order to do so, I will select a live script instead of script. Why? Because we can add the picture of problem in the file. For example, I opened a new script. You can see here. Okay, now there are two options. In live script, you can use text as well as code format. Okay, now this is a code format, but I can change this format into the text format, and then I can paste the snapshot that I copied from the document. Okay, इसको we can minimize. हम इसको थोड़ा सा minimize कर लेते हैं. Okay, minimize करने के बाद, okay, बल्कि इसको थोड़ा सा मैं maximize कर लेता हूँ. Okay, now come down. Okay, now I'm going to start. Okay, अब मैं इसका टेक्स्ट मोड यूज कर रहा हूँ. लाइव स्क्रिप्ट यूज करने का फायदा सिर्फ यही होता है कि आप टेक्स्ट से कोड फॉर्मेट में जा सकते हैं. ठीक है, टेक्स्ट फॉर्मेट में आप अपने इमेजेस को कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं, या कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसको आप कोड करना चाह रहे हैं तो उसका जो है स्नैपशॉट यहाँ पे पेस्ट कर दें ताकि आपको कोडिंग करने में आसानी रहे. ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम यूजिंग problem based optimization. अब देखें इसको मुझे कोड में, when I will come to the code, so we will solve this problem using problem based optimization. Okay, so in order to solve this problem using problem based optimization, please follow the steps. The first step is to generate a problem based problem structure, and that structure can be defined by using following command. If you can see here, this one. So प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में जो पहला स्टेप है वो है आपने एक ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है. ठीक है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं यहां से और इसको रन करूं तो आप देखेंगे ये एक प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गया. देखिए, ऑब्जेक्टिव सेंस क्या है हमारा, मिनिमाइजेशन. अगर प्रॉब्लम आपका मैक्सिमाइजेशन का है तो सिंपल आप यहाँ पे मैक्सिमाइज लिखेंगे, और आप देख सकते हैं कि एक प्रॉब्लम स्ट्रक्चर जनरेट हो गया. प्रॉब्लम में आपको पता है कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, कुछ वेरिएबल्स होती हैं, कंस्ट्रेंट्स होती हैं. ठीक है, एंड दैट्स इट. ओके, सबसे पहला स्टेप जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन में है, आपने ये वाला सेंटेंस यूज करना और इसको एज सच कॉपी पेस्ट करना. इसके अंदर आपने कोई चेंज नहीं करना. ठीक है, जब भी आपने प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो इस लाइन को एज सच लिखना है. ठीक है, नेक्स्ट फेज इज हमने सेट्स डिफाइन करने हैं. सेट्स डिफाइन करने के बाद हमने वेरिएबल्स डिफाइन करनी है. हमेशा प्रॉब्लम के अंदर सबसे पहले हम प्रॉब्लम डिसाइड करते हैं कि प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन का है या मिनिमाइजेशन का है. उसके लिए हम ये कमांड यूज करते हैं. इसको एज सच अपने कॉपी पेस्ट करके ये जो प्रोग्राम है ये बुकलेट में भी अवेलेबल है, आप वहां से भी इसको कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं या खुद से भी लिख सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद है जी हमने डिसीजन वेरिएबल डिफाइन करनी है. लेकिन डिसीजन वेरिएबल्स में हमें सेट्स को यूज करना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिफाइन द सेट्स एंड डिसीजन वेरिएबल्स.
लेट्स से कि इस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर मैं 5 सप्लायर ले लेता हूँ और 2 डिस्ट्रीब्यूटर ले लेता हूँ। ये आपने खुद लिखना है। ये ऑलरेडी प्रोग्राम का हिस्सा है। इसको आपने कोई नहीं चेंज करना है, इसको एज सच कॉपी करके पेस्ट कर देना है। लेकिन जो नंबर ऑफ सप्लायर्स हैं वो आपने खुद लिखने हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो आपने खुद लिखने हैं, नंबर ऑफ कस्टमर्स जो हैं वो खुद लिखने हैं। ये सेट्स आपका प्रॉब्लम डिफाइन करेगा। ठीक है, आपके प्रॉब्लम में कितने सेट्स हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप लेट्स से इसमें तो मैंने 3 सप्लायर लिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स लिए। हो सकता है कि आपके केस में ज्यादा सेट्स हो सकता है आपके केस में मैन्युफैक्चरर भी हो सकता है आपके केस में प्रोडक्ट टाइप्स भी हो सकता है आपके केस में टाइम पीरियड भी हो। तो जितने भी सेट्स होंगे आपने यहाँ पे उन सेट्स को डिफाइन कर देना, ऐसा लिख देना। अच्छा, इन सेट्स को लिखने के बाद अब हमने डिफाइन करनी है वेरिएबल्स। डिफाइन वेरिएबल्स। अच्छा, ये जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन है इसकी भी वेरिएबल डेफिनेशन का भी एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये जी मैंने एक पहली वेरिएबल डिसाइड की QSD, या आप इसको कह दें QIJ। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ जी QIJ। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ QIJ। अच्छा जी, अब इसमें देखें, अब जब हम प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन करते हैं तो आपने ये कमांड यूज करनी है ऑप्टिम VAR, और उसके बाद ये आपने सिंटेक्स को फॉलो करना है। ठीक है, यानी अब क्या है, ये वाली जो है ये नंबर ऑफ रोज को शो करता है, और ये जो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ये नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करता है। अगर आप इसकी वेरिएबल स्ट्रक्चर को देखना चाह रहे हैं तो एक कमांड है शो QIJ। ठीक है, अब मैं इसको इवेलुएट करता हूं यहां से यहां तक। ये देखें जी, अब ये आपके पास एक मैट्रिक्स बन गया। आई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इट इज रिप्रेजेंटिंग टोटल नंबर ऑफ सप्लायर्स या फार्म हाउसेस को शो कर रहा है। ठीक है, 1 2 3 4 5। ओके, इस प्रॉब्लम में 5 जो है आपके पास सप्लायर्स हैं। ठीक है, लेकिन आप अपने हिसाब से इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। इसको लेट्स से हम प्रीवियस जो एग्जांपल लेके चल रहे हैं हम उसी को लेके चलते हैं। जो उस डॉक्यूमेंट में एग्जांपल है उसमें जी हैं जी टोटल नंबर ऑफ सप्लायर्स और ओके, उसमें जी फार्म हाउसेस 2 हैं और वेयर हाउस 4 है। तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ, फार्म्स 2, डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेयर हाउसेस वो कहते हैं हम उसको 4 है, और टोटल नंबर ऑफ कस्टमर जो है वो है 10। ठीक है, हम उसी प्रॉब्लम को लेके चलते हैं जिसको हम बुकलेट के अंदर जो अवेलेबल। ठीक है जी, वेयर हाउस और कस्टमर 10 है। अच्छा जी, अब इस केस में ये जो रोज हैं वो फॉर्म्स को शो करेंगी और जो कॉलम है वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो करेंगी। अब देखिए मैं इसको जरा दोबारा इवेलुएट करता हूँ यहाँ से यहाँ तक। ओके, सॉरी, सबसे पहले आपको ये दोबारा इवेलुएट करना पड़ेगा सर। सॉरी, यहाँ से भी अब अपने, क्योंकि वहां पे अपने फॉर्म्स की है तो यहाँ पे भी आप फॉर्म्स कर देंगे, फॉर्म्स और वो डिस्ट्रीब्यूटर्स रहेंगे। ओके, अब हम इसको जरा इवेलुएट करेंगे तो आपके पास जो वेरिएबल्स की एक स्ट्रक्चर आ जाएगी, आप देख सकते हैं। अच्छा, अब उसके बाद आप यहाँ पे ना टाइप्स डिफाइन कर सकते हैं। ये मैंने अभी कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल डिफाइन की हुई है। ठीक है,
आप यहाँ पे इंटीजर भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से हमारी जो वेरिएबल है देयर इज इंटीजर वेरिएबल, तो मैं कंटिन्यूअस की बजाय इंटीजर कह दूँ, ठीक है, लाइक दिस यू कैन सी हियर अगेन, ठीक है। अगर आपकी वेरिएबल कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस, उसके बाद लोअर बाउंड यहीं पे आप डिफाइन कर देते हैं, इस तरह लिख के यहाँ पे जो वैल्यू थी लोअर बाउंड की वो लिख देते हैं, और उसके बाद जो अपर बाउंड है उसकी वैल्यू आ जाती है। ओके, अब इस शो वेरिएबल को प्रोग्राम में रन करने की जरूरत नहीं है, आप इसको चेक करके इसको कमेंट कर दें। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन अनदर वेरिएबल क्यू आई जे। अब इस फार्मूला के हिसाब से देखें क्यू जे के, अब हमने डिफाइन करनी है क्यू जे के। ओके, अगेन I have already developed code, so I'm just copying. ओके, अब यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर्स, ठीक है। अब इस केस में देखें ये भी कंटिन्यूअस है, तो मैं इसको भी कह देता हूँ दीज आर इंटीजर। इंटीजर वेरिएबल क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जो भी आइटम्स हैं, जो भी नंबर ऑफ एग्स फ्लो होंगे, एग्स का फ्लो होगा, नंबर ऑफ एग्स आर काउंटेबल, सो दैट्स व्हाई वी कैन काउंट देम, सो वी शुड यूज इंटीजर वेरिएबल्स फॉर दिस प्रॉब्लम। अब इसको भी मैं अगर इवेलुएट करूं तो इसको भी आप इसकी स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ओके, सो इसको देखने के लिए अगेन आई विल यूज कमांड शो वेरिएबल क्यू क्यू। ओके, एक मिनट, जरा इसमें थोड़ा सा इट वाज क्यू जे के, तो मैं इसको भी क्यू जे के कर देता हूँ, ठीक है। एंड इट वाज डी, इसको मैं जे के कर देता हूँ, ठीक है। और अब यहाँ से हम इसको इवेलुएट करें तो सॉरी क्यू जे के, यहाँ पे इसको भी क्यू जे के लिखेंगे। ओके, व्हेन वी इवेलुएट दिस यू कैन सी हियर, अब ये इसमें जो नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज किसको शो करती हैं, नंबर ऑफ रोज शो करती हैं वेयर हाउसेस को, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो शो करते हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स को। इसका मतलब ये है, ये क्वांटिटी वो है जो वेयर हाउस वन से कस्टमर वन की तरफ जाएगी। अब मिसाल के तौर पे इसकी एग्जांपल लें तो ये वो क्वांटिटी है जो वेयर हाउस टू से कस्टमर थ्री की तरफ जाएगी, ठीक है। तो अब आपने जो है ना जेनेरिक वेरिएबल्स का स्ट्रक्चर अच्छी तरह समझ लिया। अब जो आप वेरिएबल स्ट्रक्चर भी डिफाइन कर चुके हैं, यानी सिंपल है, इसमें सिंपल आपने पहले सेट्स डिफाइन करने हैं, सेट्स डिफाइन करने के बाद आपने एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, उसको फॉलो करना है। इसमें सिंपल आपने अपने जो है ना सेट्स डिफाइन किए, यानी ये वाला जो एलिमेंट, जो भी वर्ड जहाँ पे लिखेंगे वो नंबर ऑफ रो को शो करेगा, और यहाँ पे जो भी वर्ड लिखोगे वो आपके नंबर ऑफ कॉलम्स को शो करेगा, तो उससे आपके पास एक वेरिएबल का मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटर्स और कस्टमर के लिए भी आपके पास एक वेरिएबल्स का मैट्रिक्स बन गया, ठीक है। जब आप ये वेरिएबल डिफाइन कर चुके तो नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ओके, अब हम ऑब्जेक्टिव फंक्शन की तरफ आते हैं। अच्छा जी, अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन को देखने के लिए अगेन आई विल गो बैक टू द वर्ड फाइल, और वहां से मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन कॉपी करूंगा। अच्छा, मैटलैब के अंदर ना जो फार्मूला आप मैथ टाइप के जरिए टाइप करते हैं उसको एज सच कॉपी करके मैट इस मैटलैब में पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्स्ट फॉर्मेट में जाना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे हमारे पास ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये था, ठीक है, जिसको हमने मिनिमाइज करना है, तो मैंने उसको एज सच कॉपी कर लिया। अब ये क्या, सी आई जे इज कॉस्ट, डी आई जे इज डिस्टेंस, क्यू आई जे इज डिसीजन वेरिएबल, म्यू नॉट इज कैपेसिटी ऑफ ट्रक। अच्छा, म्यू वन का मतलब ये है कि हम इसमें एक टाइप का ट्रक यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हमें नंबर ऑफ ट्रक्स, मल्टीपल ट्रक्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब मैं दोबारा कोड फॉर्मेट में आ जाऊंगा और यहाँ पे इसका मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन डिफाइन करूंगा।
ओके, अब यहाँ पे देखें आपके पास ये TCCIJ, मैं इसका जो कॉस्ट है इसको मैं रेंडमली जनरेट कर रहा हूँ। CIJ, दिस इज कॉस्ट। अभी मैं रैंडम डाटा जनरेट करता हूँ बात, बट आप अपनी मर्जी से जो है ना डाटा इसके अंदर यूज कर सकते हैं। CIJ and then we have CJK. Okay, I think better I should use the exact data. Okay, I'm using the exact, I'm coding this problem objective function for you. Okay, अब सबसे पहले जी हमें किस तरह का डाटा चाहिए। CIJ, DIJ is a distance between farmhouse, poultry farm to the warehouses. तो इसका डाटा जो है ना मैं वर्ड फाइल से कॉपी करता हूँ। ठीक है, वहां से मैंने कॉपी किया, तो इसको मैं कह देता हूँ जी CLC CIJ। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ जाता हूँ वेरिएबल्स में, यहाँ से डाटा मैं पिक कर लेता हूँ, कॉपी, और अगेन आई एम कमिंग बैक। तो इसको मैं कह देता हूँ जी CIJ, और यहाँ पे मैं डाटा पेस्ट कर देता हूँ। ओके जी, okay, so I have just copied the data of CIJ. Similarly, I also copy the data of DIJ. DIJ के लिए again I will go, sorry, this was DIJ in fact, not DCIJ, this was DIJ. Okay, and the CIJ is a simple cost, that is rupee 50 transportation cost per kilometer. Okay, CIJ is simply 15। ठीक है, ओके, उसके बाद म्यू ट्रक की कैपेसिटी है। लेट्स से मैं इसको कह देता हूँ म्यू इज, लेट्स से एक ट्रक में 1100 एग्स आ जाते हैं, लेट्स से 10,000 एग्स एक ट्रक में आ जाते हैं, तो ये उसकी कैपेसिटी आ गई। ठीक है, सिमिलरली अब हमें चाहिए जी डिस्टेंस मैट्रिक्स फॉर, और ये जो CIJ की कॉस्ट है वही CJK की भी कॉस्ट है, इसको भी मैं यहाँ पे 15 डिफाइन कर देता हूँ। अच्छा, म्यू की जो कैपेसिटी है दैट इज 1000। सिमिलरली नाउ वी नीड अ डिस्टेंस बिटवीन J and K। ठीक है, अगेन आई विल कॉपी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट। अच्छा, ये डाटा कॉपी करके ना उससे वर्ड फाइल से सिंपल मैं पता क्या करता हूँ, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। वर्ड फाइल से कॉपी करके ना, मिसाल के तौर पे CJK, यहाँ पे आप एक खाली ब्रैकेट पुट करें कमांड विंडो में, और उसके अंदर इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, CJK अब आपके पास आ गया। अब इसकी वैल्यूज आपने कहाँ से लेनी है, CJK की वैल्यू, CJK यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ, CJK ये यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ से ये डाटा कॉपी करके उसको कमांड विंडो में पेस्ट कर दें, पेस्ट। ठीक हो गया जी। Now we have defined all the factors involved in this case. However, Qij or Qjk वो decision variables हैं। ठीक है, सारे पैरामीटर्स यहाँ पे हमने डिफाइन कर दिए। अच्छा, इन पैरामीटर को डिफाइन करने के बाद अब हमने ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाना है। ठीक है, अच्छा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए सबसे जो पहला स्टेप है वो ये है कि आपने एक स्टेटमेंट लिखनी है, दैट इज prop डॉट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव, ओके, ये prop डॉट ऑब्जेक्टिव लिखने के बाद आपने एज सच जो स्टेटमेंट यहाँ पे आपको नजर आ रही है ना, एज सच आपने उसको यहाँ पे लिख देना। मिसाल के तौर पे सम, एक और सम, डबल सम है, उसके बाद CIJ,
सॉरी सम ऑफ, ठीक है, इनटू सी आई जे। सी आई जे के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है जी, डी 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 आई जे मल्टीप्लाइड बाय डी आई जे। अच्छा एक चीज का ख्याल कीजिएगा, देखें सी आई जे और डी आई जे, सी आई जे एक एलिमेंट है तो यहाँ पे पॉइंट मल्टीप्लिकेशन की जरूरत नहीं है, इसको विदाउट पॉइंट मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक और ब्रैकेट इसके अंदर लगा लेंगे, ठीक है, और इस ब्रैकेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, क्यू आई जे डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ, ठीक है। अब इसी चीज को मैं कॉपी करूंगा, प्लस ओके ओके जी। अब ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन फाइनल है, लेकिन सॉरी, अब दिस वाज सी आई जे, सो दिस इज सी जे के। सिंपल इसके अंदर चेंजेस कर लें, सी जे के, so this distance will also be jk, and this qij will be qjk, and mu will be the same, okay। so अब यहाँ पे इस सारे फंक्शन को इवेलुएट करें, कहीं इसमें एरर तो नहीं है। okay, so there is some error, for example ये dij, they should be a point multiplied, क्योंकि dij और qij का साइज सेम है, तो जब इनका साइज सेम होगा तो इनको हम एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरह डी आई जे को भी इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी सिंपल देखें, अगर सी आई जे को मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक नंबर है, एक नंबर है और ये पूरे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है। लेकिन अगर हम इस कंप्लीट को लें तो ये एक मैट्रिक्स है इटसेल्फ, ठीक है। तो एक जो आपको मैंने दो तरह की मल्टीप्लिकेशन बताई थी, एक होती है एलिमेंट बाय एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन, एक होती है मैट्रिसेस मल्टीप्लिकेशन। तो अब चूंकि डी आई जे का साइज और क्यू आई जे का साइज एक जैसा है, तो ये जो है, लेट्स से अब इसको यहाँ पे एक और लगा लो, ठीक है। इसी तरह सी आई जे का एक ये अलग से एक मैट्रिक्स बन जाएगा, जैसे कर लो, ठीक है। अब ये आपके पास एक अलग मैट्रिक्स है, अब इसका जो साइज है वो वेरिएबल क्यू जे के बराबर है, ठीक है। तो ये आप मल्टीप्लाई होंगे तो अब ये आपको एरर नहीं देगा, still error, okay, let me check। अगर हम इवेल्युएट करें, यस, okay, let me do it again। पहले हम इस टर्म को ही मल्टीप्लाई करते हैं, और से शुरू करते हैं, सी आई जे, फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, सी आई जे मल्टीप्लाइड बाय डी आई जे, ठीक है। हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं ताकि मिस्टेक ना हो। तो इससे हमें एक मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। अब इसको हमने पॉइंट मल्टीप्लाई करना है क्यू आई जे डिवाइडेड बाय म्यू के साथ, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम सिंपल इस स्टेटमेंट को इवेलुएट करते हैं, ठीक है। अब ये मैट्रिक्स है, अब हमने इसको सम करना है। सबसे पहले हम रो के अलोंग सम करेंगे, इसको सबसे पहले इधर से भी क्लोज कर दें, यहाँ से भी क्लोज कर दें, ठीक है। यानी एक सम जो उसको कॉलम के अलोंग सम कर देगा, ठीक है। देन अगेन हम एक और फंक्शन इसके साथ लगाएंगे जो कि इसको रोज के अलोंग भी सम कर देगा।
अब हम सबसे पहले इसी एक पोर्शन को इवेलुएट करते हैं, फिर उसके बाद सेकंड वाला ऑब्जेक्टिव ऐड करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कोई एरर नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी किया, प्लस पेस्ट, और इसको मैं सी जे के कर देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ जी डी जे के कह देता हूँ, और इसको मैं कह देता हूँ क्यू जे के कह देता हूँ। ठीक है, अब हम इस कंप्लीट फंक्शन को इवेलुएट करते हैं। वन हमने क्यू आई जे क्यू जे के, size of QJK you can see it is 4/10, और इधर DJK का साइज कितना है, size of DJK it is 4/8, it means ये जो है ये सही हमने कॉपी नहीं किया, DIJK को मैं दोबारा कॉपी करूंगा। Sorry, there is a mistake. 1 2 3, there are 8 customers not 10, वो ठीक था। Okay, again I will change, ये कस्टमर 8 है not 10। ठीक है, there was mistake in document। Okay, now it will work। 1 2, और हमें वेरिएबल्स को भी दोबारा से इवेलुएट करना होगा, because when we change the parameters then we have to evaluate variables once again। ठीक है, so now it will not give you an issue, so now we can run here। Okay, now you can see there is no problem in objective function। एक्चुअली ये था कि जब हमने पहले रन किया था उस वक्त वेरिएबल थी 4/10, लेकिन चूंकि जो डॉक्यूमेंट थे में थे वो कस्टमर 8 थे, दैट्स वाई जब मैंने कस्टमर्स को चेंज किया तो हमें वेरिएबल्स को और दोबारा रन करना पड़ा, दैट्स वाई देयर वाज अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो नाउ इट्स फाइन। Okay, now we have defined the objective function, so next phase is to define constraints। Define constraints। Okay, so in order to define constraints, uh, again I will copy the constraints। We have a couple of constraints, and इस सबसे पहली constraint जो है वो है capacity constraint। Okay, so I will simply copy this capacity constraint and I can put here। ये capacity constraint है। अब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट क्या है, दिस इज फॉर ऑल, हर सप्लायर की अपनी कैपेसिटी है तमाम डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर्स को क्वांटिटी सप्लाई करने की। ठीक है, सो इन ऑर्डर टू develop this constraint I will just write capacity constraint। Okay, so capacity constraint can be defined as, like, I will just simply copy from there।
अच्छा, टू डिफाइन कैपेसिटी, अब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट डिफाइन करने से पहले हमें हर जो है ना सप्लायर की या फार्म हाउस की कैपेसिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज अ कैपेसिटी कंस्ट्रेंट, सो बिफोर बट दिस कैपेसिटी इज नॉट डिफाइंड, तो इस कैपेसिटी को आई विल कॉपी फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, और उस जो बुकलेट है उसके अंदर हर फॉर्म की मैंने कैपेसिटी एक टेबल में गिवन दी हुई है। ओके, कैपेसिटी इज 2 लाख and 3 lakh and 50,000. So the capacity is 2 lakh, okay, and 3 lakh 50,000 पर डे। यानी दो पोल्ट्री फार्म थे। पहले फार्म की जो कैपेसिटी है, प्रोडक्शन कैपेसिटी है, वो है 2 लाख एग्स पर डे, और दूसरे फार्म की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो है 3 लाख 50,000 पर डे। ठीक है, आप इसको एवेलुएट भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम के अंदर, आपने कंस्ट्रेंट्स को भी एज सच डिफाइन करना होता है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, सबमिशन किसके अलोंग है? जे के अलोंग है। अब अगर वेरिएबल की तरफ आए, वेरिएबल में जे किसके अलोंग है? डिस्ट्रीब्यूटर्स के अलोंग। ओके, यानी हर फार्मर की तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को एग्स प्रोवाइड करने की कितनी कैपेसिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे चूंकि वो सम जे किसके अलोंग कर रहे हैं, shows J shows warehouses, और हर कैपेसिटी, हर जो है ना, हर फार्म की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो वेरिएबल है Q, उसको सम किया मैंने अलोंग कॉलम QST नहीं, मैं इसको कहूंगा QIJ। अच्छा, QIJ कॉलम, एक किसके अलोंग सम होगा? कॉलम के अलोंग सम होगा। Sorry, no, I will show you again this variable. Let's say show variable QIJ। अच्छा, अब इसमें देखें, अब एक कंस्ट्रेंट ये बनेगी QIJ 11 प्लस, ओके, Q this element plus this element plus this element plus this element less than equal to 2000। ये कंस्ट्रेंट बनेगी पहले सप्लायर की। दूसरी कंस्ट्रेंट क्या बनेगी? यानी this element plus this element plus this element plus this element and its value will be equal to 3 lakh and 50,000। ठीक है, तो अब देखें, मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में भी बताया था कि जब आपने कॉलम के अलोंग सम करना होता है तो मैटलैब जो बाय डिफॉल्ट सम करता है ना, वो सम करता है कॉलम के अलोंग। लेकिन जब आपने उसको रो के अलोंग सम करना होगा, रो के अलोंग सम करना हो, तो आप सम QIJ और रो के अलोंग सम कर दिया। ठीक है, तो जब हम इसको सम करेंगे तो मैं आपको जरा इसकी कंस्ट्रेंट की स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। हम इसको इवेलुएट करते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कैपेसिटी कंस्ट्रेंट में जा रहा हूँ। ठीक है, अब कैपेसिटी कंस्ट्रेंट हमारे पास दो तरह की बनेगी। एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट ये है, इसको मैं जरा इनलार्ज करूँ तो आप देख सकते हैं, यानी फॉर्म 1 की पहले वेयर हाउस को जो क्वांटिटी जाएगी, प्लस फॉर्म 1 की दूसरे वेयर हाउस को जो क्वांटिटी जाएगी, प्लस फॉर्म 1 से तीसरे वेयर हाउस को जो क्वांटिटी जाएगी, प्लस फॉर्म 1 की चौथे वेयर हाउस को जो क्वांटिटी जाएगी। ये हो गई पहले सप्लायर के लिए। दूसरे सप्लायर के लिए भी आप देख सकते हैं। ठीक हो गया जी। अब दूसरे सप्लायर की पहले वेयर हाउस के लिए क्वांटिटी, दूसरे सप्लायर के लिए दूसरे वेयर हाउस की क्वांटिटी, दूसरे सप्लायर की तीसरे वेयर हाउस के लिए क्वांटिटी, दूसरे सप्लायर की चौथे वेयर हाउस की क्वांटिटी, और दैट इज लेस देन देयर अवेलेबल कैपेसिटी। देखिए, बहुत सिंपल है यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को डिफाइन करना। अब हम चलते हैं जी कैपेसिटी कंस्ट्रेंट के बाद हम चलते हैं जी डिमांड कंस्ट्रेंट पे।
ठीक है, ये फॉर ऑल किस लिए किया? फॉर ऑल जो है ना सप्लायर के लिए। तो आपने देखा कि दो कंस्ट्रेंट बनी, क्योंकि दो सप्लायर थे तो कैपेसिटी की भी दो कंस्ट्रेंट बनी, क्योंकि हर सप्लायर की कैपेसिटी गिवन है। इसी तरह हम डिमांड कंस्ट्रेंट पे चलते हैं। अगेन आई विल कॉपी अ डिमांड कंस्ट्रेंट फ्रॉम दैट। जब मैं इसको कॉपी करूंगा and when I paste here, तो इसके लिए हमें पहले सॉरी डॉक्यूमेंट मोड में जाएंगे, देन आई कैन पेस्ट here। अब यहाँ पे देखें कि हर कस्टमर की तरफ से डिमांड होगी QJK की तरफ से। अब अगर मैं आपको दोबारा लेके चलता हूँ कोड मोड में। अब अगर हम कोड मोड में है, अब QJK की स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक है, यहीं पे मैं आपको दिखा देता हूँ, शो वेरिएबल QJK। ठीक है, अब देखें, अब ये जो रोज है ये शो करती हैं वेयर हाउसेस को, और जो कॉलम्स हैं वो शो करते हैं कस्टमर्स को। अब हर कस्टमर की डिमांड है ना, तो वो हर वेयर हाउस से होगी ना, तो हम अब सम किसके अलोंग करेंगे? वेयर हाउसेस के अलोंग करेंगे। मींस आप इस इक्वेशन में भी देख सकते हैं, अगर मैं नीचे आऊं जरा, के अलोंग मैंने सम किया हुआ। के किसको शो करता है? कॉलम को शो करता है, यानी ये वाला कॉलम, यानी QJK this value plus this value plus this value plus this value will be equal to demand of customer 1। this value plus this value plus this value will be equal to demand of customer 2, and this value plus this value plus this value plus this value will be equal to the demand of customer 3 and so on। बहुत सिंपल है। इसमें एज सच आप सिंपल बेशक इसी को कॉपी कर लें। सॉरी, सबसे पहले डिमांड डिफाइन कर लेना हर कस्टमर की तरफ से, डिमांड। ठीक है, डिमांड भी मैं कॉपी करूंगा वहां से। ये है डेली डिमांड एग्स की ना, डिफरेंट रिटेल स्टोर से। सो लेट मी कॉपी दिस फाइल। ओके, लेट्स से यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ डिमांड को, और यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ वैल्यूज। ठीक है, तो अब यहाँ से मैं डी कॉपी करता हूँ, ये डिमांड आ गई जी। ठीक है, एंड सिंपली वी विल पोस्ट पेस्ट हियर डिमांड। ओके जी, डिमांड आ गई। अच्छा, अब सिंपली यही कैपेसिटी कंस्ट्रेंट को मैं कॉपी करता हूँ, कॉपी पेस्ट, और कैपेसिटी को यहाँ पे मैं कह देता हूँ दिस इज अ डिमांड कंस्ट्रेंट। और QIJ की जगह यहाँ 2 की बजाय 1। अब ये क्या करेगा? QJK को सम करना है, तो ये अब कॉलम के अलोंग करेगा। ठीक है, अच्छा, अब जब कॉलम के अलोंग करेगा तो यहाँ पे मैं इसको कह देता हूँ जी डिमांड। ठीक है, अब अगर मैं इसको इवेलुएट करूं तो आप देखिएगा, ठीक है। अब यहां से मैं जाता हूं जी डिमांड कंस्ट्रेंट में। अब देखें, क्योंकि देयर वर टोटल ऑफ 8 नंबर ऑफ कस्टमर्स, सो देयर विल बी 8 डिमांड कंस्ट्रेंट्स। अब देख सकते हैं, ओके। अब ये लेस देन के लिए नहीं होगी, दिस विल बी इक्वालिटी कंस्ट्रेंट, तो यहाँ पे आप डबल साइन लगा के दोबारा इवेलुएट कर लें। ठीक है, अब हम दोबारा डिमांड पे जाके देख सकते हैं, आपके पास देखें हर कस्टमर की जो है ना डिमांड आएगी। ये कस्टमर 1 की वेयर हाउस 1, वेयर हाउस 2, वेयर हाउस 3, वेयर हाउस 4 से डिमांड आ गई। ठीक है, इसी तरह आप मजीद देख सकते हैं 8 की 8 कंस्ट्रेंट जो है ना, आप उनको देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम ये लास्ट वाली देखते हैं, 8वें कस्टमर की तमाम वेयर हाउसेस से ये डिमांड है। ठीक है, अब 8वें कस्टमर की जो डिमांड है दैट इज 18,000,
तो आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये देखें 18,000। ठीक है जी, डिमांड कंस्ट्रेंट्स भी कंप्लीट हुई। नाउ नेक्स्ट टास्क इज टू गो फॉर द transshipment constraint. Transshipment constraint, number of transshipment constraints are always equal to the number of distributors or the number of warehouses in this case. और जबकि जो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट होती है या सप्लाई कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो कंस्ट्रेंट्स बराबर होती हैं नंबर ऑफ सप्लायर्स के, और जो डिमांड कंस्ट्रेंट्स होती हैं वो बराबर होती हैं नंबर ऑफ कस्टमर्स के या जहां से ऑर्डर जनरेट हो रहा होता है। और जो ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट होती है वो डिपेंड करती है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स या नंबर ऑफ वेयर हाउसेस पे। ठीक है, तो अगेन आई विल कॉपी ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट फ्रॉम द मॉडल। ओके, आई विल पेस्ट हियर। ठीक है, अब ये देखिए सम किसके अलॉन्ग हो रहा है, तमाम यानी तमाम सप्लायर से जितनी भी क्वांटिटी डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ आ रही है उसको सम कर रहा है, और जो अगली टर्म में तमाम क्वांटिटी जो तमाम सॉरी क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो तमाम कस्टमर्स को जा रही है डिस्ट्रीब्यूटर की तरफ से वो भी सम हो रही है। और ये होनी कंस्ट्रेंट्स कितनी बनेंगी, जितने हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटर्स या वेयर हाउसेस होंगे। ठीक है, तो इसकी कंस्ट्रेंट भी, इसको भी मैं आई विल कम अगेन इनटू द कोड मोड एंड देन आई कैन कॉपी and I can copy from here the data for the transshipment constraint, which is so simple, and I will explain in detail how we can do that. Okay, now look at this. अब इस कंस्ट्रेंट का मतलब क्या है कि तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स क्यू JK and this will be QIJ, यानी QIJ सम किया हमने इसको कॉलम के अलोंग। इफ यू लुक एट द वेरिएबल स्ट्रक्चर ऑफ QIJ, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। शो वेरिएबल QIJ। अब देखें हमने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंस्ट्रेंट्स बनानी है। ठीक है, जब डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए कंस्ट्रेंट बनाएंगे तो अब सम किसके अलोंग होगा, तमाम सप्लायर के अलोंग, यानी Q ये वैल्यू प्लस दिस वैल्यू will be equal to constraint number 1. This value plus this value will be constraint for distributor 2. This value plus this value will be constraint for distributor 3, and sum of these values will be a constraint for the distributor 4. अब यहाँ पे क्या किया हमने, सम किया कॉलम के अलोंग, सो आई जस्ट पुट 1 देयर। तो 1 सम करने का मतलब ये है ये सारी वैल्यूज जो हैं वो कॉलम के अलोंग सम होगी। ठीक है, अब हम दूसरे केस में जाते हैं। ओके, दूसरे केस को जब मैं इवैल्यूएट करता हूँ, लेट्स से मैं आपको वेरिएबल दिखाता हूँ पहले, शो वेरिएबल QJK। ओके, अब QJK को देखें तो अब इसकी इसमें जो सम होगा वो सम किसके अलोंग होगा, दैट शुड बी अलोंग रो, यानी ये जो तमाम कस्टमर्स को ये वेयर हाउस क्वांटिटी देगा दैट शुड बी बैलेंस्ड विद द प्रीवियस वन। ठीक है, तो इसका सम शुड बी इक्वल टू शुड बी इसका सम और इसका सम और इसका सम, तो ये वो क्वांटिटी है जो वेयर हाउस तमाम कस्टमर्स को देगा। ठीक है, अब देखें ये जो मैट्रिक्स है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ रोज, तो इसलिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया ताकि ये भी हमारे पास रो की फॉर्म में आ जाए लाइक दिस। ठीक है, अब जब हम इसको सम करते हैं, जैसे शो इसकी वेरिएबल को शो कर, अब हमने इसको बैलेंस करना है। बैलेंस कैसे होगी कि हर जो है ना डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो तमाम सप्लायर से क्वांटिटी आ रही होगी वो तमाम कस्टमर्स की तरफ जा रही हो। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रांसपोज लगाया ताकि ये बैलेंस्ड हो जाए। ओके, यू कैन सी फ्रॉम हियर। ठीक है, इसको मैं जरा दोबारा एक्सप्लेन करूं, मेरे ख्याल से आपको क्लियर नहीं हुई। अब देखें शो
शो वेरिएबल क्यू आई जे है। अब इसमें देखें हम सम किसके अलोंग कर रहे हैं, देयर इज सम अलोंग अ कॉलम। तो हमारे पास ये जो एक अरे आएगी वो एक रो आएगी ना, ठीक है, ये एक रो होगी। जब इस केस में हम सम करेंगे, ऑन अनदर हैंड शो वेरिएबल क्यू जे के, अब दो केसेस हैं। अब इसके कॉलम जो है नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स को शो कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेयर हाउसेस को शो कर रहे हैं, जबकि इसके जो है रोज हैं वो नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स या नंबर ऑफ वेयर हाउसेस को शो कर रही हैं। तो इसीलिए मैंने इसका ट्रांसपोज लिया ताकि ये भी एक रो मैट्रिक्स बन जाए, ताकि ये इक्वल हो जाए। मैटलैब जो है ना, दे इसमें कंसिस्टेंसी को फॉलो किया जाता है, यानी अगर रो मैट्रिक्स will be equal to a row matrix, a row matrix cannot be equal to a column matrix, ठीक है। इस केस में कॉलम मैट्रिक्स बनेगा, तो इसलिए मैंने उसको ट्रांसपोज ले लिया ताकि इसका एक रो मैट्रिक्स बन जाए, ठीक है। आवर जॉब इज फिनिश। नेक्स्ट स्टेप जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जिसको आपने एज सच यूज करना है। आई विल सिंपली कॉपी, okay, this is a standard format to define constraint in optimization problem objective, okay, simply I will paste here, ठीक हो गया। ओके, अब देखें, अब अपने नेम इनके प्रॉपर डिफाइन करने हैं। मिसाल के तौर पर ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट यानी प्रॉब डॉट कंस्ट्रेंट डॉट डिमांड कंस्ट्रेंट इज इक्वल टू अगेन वही उसी कंस्ट्रेंट का नाम लिखना है। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, इसको अपने एज सच फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास तीन तरह की कंस्ट्रेंट्स थी, डिमांड कंस्ट्रेंट और कैपेसिटी कंस्ट्रेंट और ट्रांसशिपमेंट कंस्ट्रेंट, ठीक है। उनको मैंने एज सच डिफाइन कर दिया। ओके, नेक्स्ट स्टेप इज सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सिंपल उसकी कमांड है, simply you can put here and you can simply अब now the problem is completed। आप simply इसको let's say I just copy here, okay, so you can see the optimal results, problem solution is here। अब यहाँ पे QIJ जो शो करती हैं, ये डिसीजन वेरिएबल शो करती हैं वो क्वांटिटी जो फॉर्म से वेयर हाउस की तरफ गई थी, और QJ वो क्वांटिटी शो कर रही है जो वेयर हाउस से कस्टमर की तरफ गई थी, ठीक है। इनकी वैल्यूज को देखने के लिए आप आएंगे यहाँ पे, क्लिक करेंगे QIJ पे क्लिक करें पहले, सॉरी आप QIJ पे नहीं, यहाँ पे सोल्यूशन में क्लिक करेंगे, स्ट्रक्ट पे, ठीक है। यहाँ से आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगी। ये वो क्वांटिटीज हैं जो फार्म से वेयर हाउसेस की तरफ गई, ठीक है। अगेन आप यहाँ पे सोल्यूशन पे आए तो यहाँ पे QIJ वो क्वांटिटी है जो डिस्ट्रीब्यूटर से तमाम कस्टमर्स की तरफ गई। सो दिस वाज प्रॉब्लम बेस्ड ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है। अब ये था, मैंने एक लाइव स्क्रिप्ट जनरेट किया ना फॉर योर कन्वीनियंस। आप क्या करें कि अगर लेट्स से आप इसको लाइव स्क्रिप्ट में नहीं रखना चाह रहे, तो आप एक अलग से कोई नया स्क्रिप्ट जनरेट कर लें। लाइव स्क्रिप्ट नहीं है, अब ये लाइव स्क्रिप्ट नहीं है, ठीक है। सिंपली आपने जो भी कोडिंग की है इस प्रोसेस में वो कॉपी करते जाएं यहाँ से। लेट्स से स्टार्ट करते हैं यहाँ से, सॉरी नहीं यहाँ से, यानी जो लेट्स से यहाँ से आप कॉपी करना शुरू कर दें और इसको यहाँ पे पेस्ट करते जाएं, ठीक है। एंड अगेन आई कैन कॉपी, यहाँ से वेरिएबल्स भी कॉपी कर लें आप, ठीक है। इसी तरह अगेन यहाँ से आप फंक्शन भी कॉपी कर लें, इसको पेस्ट कर दें यहाँ पे। फंक्शन को कॉपी करने के बाद
और भी जो इसके अंदर आपने कोड की हैं चीजें उनको भी कॉपी कर लें। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट कॉपी करें इसको, पेस्ट किया, ठीक है। कैपेसिटी कंस्ट्रेंट पेस्ट करने के बाद सॉरी इनको सेमीकोलन लगा के क्लोज कर लें। डिमांड कंस्ट्रेंट पे आ जाएं। कॉपी, डिमांड कंस्ट्रेंट का डाटा यहाँ पे कॉपी करें, ठीक है। उसके बाद जी और ये चीज कॉपी करें यहाँ से, इसको यहाँ पे पेस्ट कर दें। सॉरी मेरे मिस्टेक। ठीक है, ये यहाँ पे कॉपी हो गया। उसके बाद जी आप कॉपी कर लें सिंपल ये लास्ट वाली ऑप्शन, दैट इज सॉल्यूशन। Okay, now once you have copied this data, the next phase is to get the results. अब इस फाइल को सेव कर लें बेशक। I just save as generic optimization problem. Oh, sorry, problem based transshipment model. Shipment model, ठीक है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ और आपसे भी मैं ये फाइल शेयर कर दूंगा, ठीक है। Simply run it, add to path, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन वैल्यू ये है, और लेट्स से अब आपने डिसीजन वेरिएबल्स की वैल्यूज देखनी है, तो उसके लिए आप यहाँ पे अगेन सॉल्यूशन पे क्लिक करोगे, ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्यू आई जे की वैल्यूज मिल जाएंगी, ठीक है। अगेन बैक कम टू द सॉल्यूशन, और क्यू जे के पे क्लिक करोगे तो आपके पास वो क्वांटिटी आ जाएगी जो वेयर हाउसेस से कस्टमर्स की तरफ जा रही हो। Thank you, and I will recommend you to please do some practice for problem-based optimization. I'll just give you 2 to 3 days for the exercise for problem-based optimization. So once you do some practice problems using problem-based optimization, then maybe by the Friday, this coming Friday, I will record another type of optimization, that is solver-based optimization. Okay, solver-based optimization can be used to solve problems using different types of optimization approaches, such as genetic algorithm, pattern search, and there are a lot of PSO. So many algorithms can be used to solve the problem-based optimization. Okay, thank you.